میں اپوزیشن کا وجود سرے سے ہو ہی نہ، اس طرح نہ یہ ملک چل پائے گا۔ ملک کے لوگوں میں، ملک کے طول و عرض میں، خیبر پختونخوا سے لے کر گوادر تک اور گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک کوئی ایسا ملک کا حصہ نہیں ہے اس وقت جس میں شدید اضطراب نہ پایا جاتا ہو، جہاں پر سچویشن والیٹائل نہ ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم کر کے آپ نے عدلیہ کو ایک ذیلی محکمہ بنا دیا ایگزیکٹو کا، پیکا کے قوانین لا کر میڈیا کے سر پر تلوار لٹکا دی، کالے قوانین بنا دیے کہ کوئی احتجاج نہ کر سکے، کوئی اکٹھا نہ ہو سکے، اور اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس تمام ماحول میں جہاں پر اس وقت اس ملک کا کسان بے حال ہے، مڈل کلاس بے حال ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، اپنے گیس اور بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے گھر کے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہا، کاروباری طبقہ ہڑتالوں پر ہے، اور اس صورتحال میں آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں گفتگو نہ ہو، اپوزیشن اکٹھی نہ ہو، بات چیت نہ کرے، کوئی حل نہ تجویز کرے۔ یہ فسطائیت ہے، اور ایسی فسطائیت کہ یہ جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم، جس میں یہ تمام جماعتیں شامل تھیں، میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر جہاں پر پہلی کانفرنس ہوئی، عمران خان صاحب کا دور تھا، پہلی کانفرنس ہوئی، وہاں پر نہ کسی نے ہم سے پرمیشن مانگی، نہ ہم نے کسی سے پرمیشن لی، اور نہ ہی اس وقت کوئی حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپوزیشن کے اکٹھ کو روکنے کی اس وقت کوشش کی گئی۔ یہ جو آج جماعتیں حکومت میں، بڑی بڑی تقاریر کی انہوں نے اس کانفرنس میں، جمہوریت کے لیے زمین اور آسمان کے کلابے انہوں نے ملائے، لیکن آج ان کا اپنا حال دیکھیے کہ جمہوریت کی باتیں کرتے کرتے، کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے کرتے، رائٹس کی باتیں کرتے کرتے، آج جب خود حکومت میں ہے تو اپوزیشن کو تمام حقوق سے انہوں نے محروم کر دیا۔ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کل جماعتی کانفرنس ہے، ہم اس کو پھر بھی منعقد کریں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قریب میں ایک جگہ ہے جہاں پر ہم نے بندوبست کر رکھا ہے، ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا۔ اسلام آباد کا کوئی اور وینیو ہمیں اویلیبل نہیں تھا۔ انتظامیہ نے ہوٹل کے مالکان کو یہ ہدایات جاری کی کہ پورے اسلام آباد میں مارکی ہالز والوں کو، بینکویٹ ہالز والوں کو، کہ اپوزیشن کو کوئی جگہ نہ دی جائے۔ اس کے باوجود ہم نے راتوں رات ایک جگہ پر انتظام کر لیا، اس کی لوکیشن، وہ سارا کچھ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ہماری تمام سمپتھیز بھی ہیں جو اس ہوٹل، ٹیولپ ہوٹل کی ایڈمنسٹریشن ہے، کہ ان کو جس پریشر کا سامنا کرنا پڑا، ان کے اوپر جو جبری ہتھ کنڈے آزمائے گئے اس کانفرنس کو روکنے کے لیے، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ تو ایک کاروباری آدمی ہے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت کیا نظام رائج ہے، اور جو بھی نظام رائج ہے اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے، اس کو ایک ہی لفظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہائیبرڈ وغیرہ کی اصطلاح اب پرانی ہو چکی، یہ عسکری جمہوریت ہے، اور یہ عسکری جمہوریت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے عوام۔ بہت بہت شکریہ۔ بس کافی ہوا ہے۔ بسم اللہ جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مصطفیٰ کوکر صاحب نے آج کی رویداد آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ بلوچستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، وہاں پہ جس طرح ماشاءاللہ تو ہم کہتے ہیں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے بلوچستان میں کبھی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ہم یہ الائنس کی جانب سے جو سارے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو، انٹلیکچوئلز کو، وکلاء کو، ان سب کو بلا کے یہ ملک کی داستان اس کے سامنے رکھنا تھا۔ آج بلوچستان کا مقدمہ جس میں ہم نے اس کو رکھ کے ان تمام سیاسی جماعتوں کو، وکلاء اور انٹلیکچوئلز کو بتانا تھا کہ بلوچستان اس وقت جو خواتین جیلوں میں ہے، خواتین سڑکوں پہ ہے، نوجوان جو ہے جس طرح بیزار ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت کی اس اقدام سے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک پرامن آل پارٹیز کانفرنس جہاں پہ مشاورت ہونی تھی، ہر سیاسی جماعت نے اپنی بساط کے مطابق اپنا موقف رکھنا تھا، اس کو بھی انہوں نے اس طرح بند کر کے بلوچستان کے نوجوان جو پہلے سے ہی وہ کہہ رہے کہ ہمیں اس جمہوریت میں
हमें इस मुल्क के आइन में हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया। तो आज जब आप उसका ये रास्ता भी बंद कर रहे हैं, एहतजाज का रास्ता बंद कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद करके आप यहाँ को लोगों को ये इकट्ठा होने भी नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के बाकी नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? या यही कि जो पहले से पहाड़ों पे गए आप भी चले जाए, यानी दूसरा रास्ता कौन सा रह जाता है? तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से इस अक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और ये इसको हमने पहले से हमारी पार्टी का भी ये एक गैर ऐलान शुदा मार्शल्ला है जो इस वक्त इस मुल्क में मुसलत है, और तमाम आइनी जमहूरी रास्ते बंद किए गए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने सुना हमारे साथियों को, मुस्तफ़ा खोखर साहब को, और भाई ने भी अभी बात की, मैं चूँकि उस जमात से मेरा ताल्लुक़ था जो आज हुक्मरान है। इन्होंने मैरियट होटल का जिक्र किया था मुस्तफ़ा खोखर ने। मैं 3.5 साल उस जद्दोजहद में सबसे आगे था, और उस 3.5 साल में एक दफ़ा भी ना कोई परमिशन, ना अप्रूवल, ना किसी जलसे के लिए, ना रैली के लिए, इसी इस्लामाबाद में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आके हमने मुजाहरे किए थे। कभी इजाज़त नहीं, कभी एक अरेस्ट नहीं हुआ था, कभी पुलिस ने ये पूछा नहीं था कि जी आपके पास इजाज़तनामा है। अब इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जिसमें बिल्कुल नहते लोग आ रहे हैं, सारे अच्छे शरीफ लोग हैं, उनको भी अगर ये इजाज़त नहीं है यहाँ कॉन्फ्रेंस करने की, तो आप सोच सकते हैं कि फस्तायत की इंतहा क्या है। मेरा नहीं ख्याल है, मुझे नहीं पता, बट जो मैंने तारीख पढ़ी है, इस किस्म के हरबे तो ज़ियाउल हक और अयूब खान के ज़माने में भी नहीं होते थे। सो बेसिकली बात यह है कि ये अफसोस का मुकाम है, लेकिन हुकूमत को ये पता होना चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लावा पकड़ा है, 2024 का जो इलेक्शन था उसमें मैंडेट चुराया गया था। अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, इस रजीम के साथ नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना लावा फटेगा, और वो जब आएगा सामने तो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह होगा। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अपोजिशन को अलाउ करें, जहाँ तक वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तकरीरें करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, और हुकूमत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना है, क्योंकि 2024 में 2023 में उन्होंने वो चीज़ें की हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी। चाहे वो 2024 का इलेक्शन था जो एक साइलेंट रेवोल्यूशन था, उसको दबाया गया, मैंडेट चोरी किया गया, खुल के चोरी किया गया, हर एक के लिए, तमाम लीडरान के लिए जो रूलिंग रजीम में इस वक्त हैं। और मैं ख़ास तौर पर सिंध की बात इसलिए नहीं करूँगा कि सिंध कोई मुख्तलिफ नहीं है बलूचिस्तान और बाकी पाकिस्तान के सूबों से, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि सिंध में इस वक्त जो एक ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा करप्शन के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख में पिछले 50 साल से मैं कराची में रह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा था कि इस किस्म की करप्शन हो, इस लेवल की करप्शन हो, क्योंकि उनको पता है कोई रोक टोक नहीं है, ना फेडरल हुकूमत उनको रोकने के लिए तैयार है। वो कहते हैं सिस्टम को चलना है, और तमाम चाहे जो भी दूसरे इदारे हैं वो कहते हैं सिस्टम को चलना है, इसलिए वज़ीरों को और मशीरों को सबको करप्शन करने की इजाज़त दी जाए। सो एक दफ़ा फिर अपने पुराने साथियों से भी एक इल्तिजा है कि कॉन्फ्रेंस होने दें, और यहाँ कोई ऐसा तोड़ फोड़ नहीं होगा, कोई यहाँ बंदूकें लेके नहीं आया। जैसे फवाद चौधरी बड़े, हम कोई बंदूकें तो है नहीं हमारे पास कि हम लड़ने के लिए आएँ, और ना ही हम लड़ सकते हैं स्टेट के साथ। सो कॉन्फ्रेंस एक पीसफुल इनेकाद है उस चीज़ का इजहार करने के लिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत का रिवाइवल है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन जमातों का हमेशा ये आइनी, जमहूरी, पार्लिमानी और सियासी हक होता है कि हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करे, अवाम के जो हकूक़ छीन लिए जाते हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करे, और वायलेंस ना करे, और पुरअमन तरीके से एहतजाज करे। और अपोजिशन जमातों की हमेशा पुरअमन जमहूरी, सियासी, आइनी मुज़ाहमत जारी रहती है, लेकिन जब भी हुकूमतें जबर के साथ, ताकत के साथ, अंधी क़ुव्वत के साथ अपोजिशन की आवाज़ को दबाते हैं और अपोजिशन की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर ये तमाम आमरीतें हमेशा के लिए एक इबरत भी बन जाती हैं और तारीख़ के अंधे कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन ये जमहूरी अमल जारी रहता है। और मैं आज के इस वाक़े पर कि जो एक होटल में तमाम अपोजिशन जमातों ने इकट्ठा होना था, उस पर पाबंदी आयद की है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं।
اور اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے اوپر بندشیں ہیں، اور خیبر پختونخوا کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر بندشیں ہیں۔ عملاً اسلام آباد بھی، پنجاب بھی، سندھ بھی اور پورا ملک جو ہے وہ ایک ہی طرز کے نظام کی غلامی میں دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سیاست، جمہوریت اور آئینی جتنی بھی جد و جہد ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جماعتیں اسی بات پر اتفاق رکھتی ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، عدل و انصاف کی آزادی ہونی چاہیے، فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے صوبوں کے حق ملکیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، لاپتہ افراد جو زندہ غائب کر دیے گئے ہیں ان کے خاندان بلک رہے ہیں، ان کی آواز کو سننا چاہیے۔ اسی طرح قومی وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ عیاشیاں، مفت خوری اور قومی خزانے پر جو لوٹ مار ہے یہ عوام پر ایک عذاب بنی ہوئی ہے، اور ٹیکسوں کی بھرمار پاکستان کے عوام سے جینے کا حق چھین رہی ہے۔ انشاءاللہ جتنی بھی بندشیں ہوں گی یہ اپوزیشن کو اور طاقت دیں گی، اپوزیشن کی آواز کو اور مضبوط کریں گی اور حکمران عبرت بنتے چلے جائیں گے۔ آج کوئٹہ سے جو ایک کارواں بلوچستان کے حقوق کے لیے نکلا، ڈیرہ غازی خان میں گرفتاریاں کی گئیں، مظفر گڑھ کے راستے میں بندشیں پیدا کی گئیں، شاہراہ بند کر دی گئی، چناب پل بند کر دیا گیا، اس وقت ان کو لاہور میں محصور کر دیا گیا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا۔ میں آج کے اس حکومتی اقدام کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور بلوچستان کے عوام جو اپنے حقوق کے لیے ایک لانگ مارچ کی صورت میں لاہور میں محصور ہیں، حکومت سے کہتے ہیں انہیں اسلام آباد آنے دیں اور ان کی بات کو سنیں۔ انشاءاللہ ہم اپوزیشن کے قومی ترجیحات پر ایک مشترکہ موقف کے لیے جماعت اسلامی اپنا ایک قومی آئینی سیاسی کردار ادا کرے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر حکومت کے اقدامات کی مذمت کرتا ہوں۔ جی زین شاہ صاحب، جی ڈی اے سندھ یونائیٹڈ پارٹی۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد میں فیبرری میں بھی یہ ہوا، اور ایک مرتبہ پھر میسیج دیا گیا کہ آپ کو اپنی آواز اٹھانا یا اپنا موقف دینا، وہ بھی بند کمرے میں، یہ بھی ممانعت ہے۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل مارشل لگایا ہے اس شکل میں میرا خیال ہے کہ ملک کا چلنا مشکل بنتا جا رہا ہے، اور جب بھی، لیکن ہمیں امید ہے کہ جب بھی گھٹن ہوتی ہے تو ایک بارش آتی ہے۔ تو یہ جو سیاسی گھٹن پیدا کی ہے اس سے، اور وہ بھی مرکز میں، اور مرکز کی طرف سب کو میسیج دیا گیا ہے کہ ادھر نہ آئیں، ادھر سیاست پہ پابندی ہے، تو ادھر اپنا موقف دینے پہ پابندی ہے۔ تو اس ٹائپ کا سسٹم نہیں چلے گا، اور سرٹیفائیڈ کرپٹس جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بٹھائے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کرپشن کا سرٹیفکیٹ دے کے اور ساری دولت پریزیڈنٹ کے ہاتھوں لکھوائی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سارے ملک کے 24 کروڑ عوام کی ملکیت لے کے کچھ کمپنیوں کو دے کے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ساری سیاسی قوتوں کی آواز کو بند کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مارشل ہو یا اس میں جوڈیشری پہ پابندی ہو اور جرنلسٹ پہ پابندی ہو، اب پالیٹکس پہ بھی ٹوٹل پابندی ہے۔ یہ تو میٹنگ تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج اور جلسہ اور یہ کرنے پہ تو بند ہے۔ تو ایسے ماحول میں میرا خیال ہے کہ یہ ناجائز حکومت جو آئی ہے، جو یہ لائے ہیں اور جو نظام لائے ہیں 8 فروری 2024 کو، یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اکابرین،
8 फरवरी खड़े हैं 1975 में नैब पे पाबंदी पड़ी थी 8 फरवरी, फिर 8 फरवरी 1924 को और 2024 को फिर ये इलेक्शन ही दहशतगर्दी हुई। तो इससे या तो इसको बंद करें, ये जो जाली पार्लियामानी निज़ाम है जिसमें किसी इंसान को अपनी राय दी का हक नहीं है, या तो इसको बंद करें और फिर बलूचिस्तान के हालात और केपी के हालात और जीबी के हालात और इनके लिए तैयार हों कि लाहौर में भी और कराची में भी वही हो। तो या तो एक रास्ता ये निकलता है हमारी यंग जनरेशन के लिए, अंदर नस्लों के लिए। हम चाहते हैं कि इंसाफ, ईमानदारी और पार्लियामानी सिस्टम, रियल फेडरल पार्लियामानी सिस्टम लाया जाए जिसमें हर इंसान को हुकूक हों और ये कड़ा एहतसाब और जाली निज़ाम को ख़त्म किया जाए तो मुल्क आगे रास्ता निकलेगा, वरना अनारकी की तरफ जाएगा और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। सफदर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं जी बुनियादी तौर पे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि ज़्यादातर हम लोग सिंध के अंदर हैं जी, उसके सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में आज मैं यहाँ महमूद खान चकरी साहब की इन्विटेशन पे तमाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जो पार्टीज़ हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हालात कुछ बेहतर होते इस्लामाबाद के तो शायद हमारे दीगर साथी भी यहाँ पहुँच जाते, लेकिन मेरी आवाज़ जो भी जहाँ भी पहुँच रही है, ये आप समझें कि सिंध की अपोजिशन की आवाज़ है। हम यहाँ पे इससे पहले गालबन 26 और 27 फरवरी को आपको याद होगा कि कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने की कोशिश की थी पहले भी, लेकिन जिस अंदाज में उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया गया उससे जो मैसेज जाता है कम से कम हम लोगों को, माज़रत के साथ मैंने सारी ज़िंदगी वफाक की पॉलिटिक्स की, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एक लंबा अरसा गुजारा और इस्लामाबाद की गलियों से और इनकी सड़कों से भी मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन मजबूरन हम लोग अब आहिस्ते आहिस्ते महदूद होते जा रहे हैं। मेरी जो ये आवाज़ है जहाँ तक पहुँच रही है, वो मुझ जैसे लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि हम जो सारी ज़िंदगी वफाक की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और सारी ज़िंदगी जो हमने वफाक की और बात की है, हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। अब अगर हम कराची से चल के यहाँ आते हैं तो हमारे लिए होटल का एक कमरा भी जो अवेलेबल नहीं है जहाँ बैठ के हम आपस में कोई गुफ्तगू शुनीद कर सकें। ये क्या थी, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, ये बुनियादी तौर पे दोस्तों को इनवाइट किया गया था डिलिब्रेट करने के लिए कि जी आइंदा आने वाले जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी बहुत बुरे हालात में है, हम कर्ज़ों पे ज़िंदा हैं। हमारी जो फॉरेन जो करेंसी डिपॉजिट्स की बात करते हैं 14 अरब डॉलर, वो तो सारे के सारी बोरोड मनी है, या यूए की है या चाइना की है या सऊदी अरब की है। आज आप जो है ना 25 अरब डॉलर आपको सालाना चाहिए अपनी सिर्फ करंट अकाउंट को जो है ना आगे चलाने के लिए। आपके इंटरेस्ट रेट्स जो है ना उसकी वजह से आपकी सारी की सारी सूद 8 ट्रिलियन रुपीस 8,000 अरब रुपए हम सूद में दे रहे हैं, कर्जों के सूद पे दे रहे हैं। तो इन हालात के अंदर अगर अपोजिशन इकट्ठी होकर कोई चीज़ बात करना चाहती है तो उसका बात करने का मौका भी नहीं देती। तो मैं आज यहाँ से जब मैं दोबारा कराची जाऊँगा या मैं लाड़काना जाऊँगा तो मैं क्या मैसेज लेके जाऊँगा, यही कि जी इस्लामाबाद में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तो मैं सर यहाँ तो नहीं करने दे रहे, जो हमारा राइट है, हम अपना राइट, अगर होटल को कोई एतराज़ नहीं था तो हुकूमत बंद करने वाली कौन होती है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम जहाँ भी जाएंगे डिलिब्रेशन होगी और पैगाम यही है, हम इकट्ठे हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाह बर्बाद कर दिया इस जुडिशल निज़ाम को। आज आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, आज आपकी जो कोर्ट्स हैं, जिस किस्म के वो फैसले दे रही हैं, वो किसी तौर पे भी आवाम के अंदर काबिल कबूल नहीं है। उनके पास सीरियस किस्म के जो ना अपने तजादात उभर रहे हैं। पीका अमेंडमेंट हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि जितने भी सियासी कैदी हैं इस वक्त, बशमूल खान साहब के, बशमूल शाहमूद कुरैशी साहब के,
बशमूल हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो कि कैंसर पेशेंट है, बशमूल एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब के, सबको आज़ाद होना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब के साथ सिंध में जो कुछ हो रहा है हम उसकी मज़म्मत करते हैं, और यकीनन जो है आज मैं सिर्फ ये पैगाम के साथ आपको ये कहते हुए कि निहायत अफसोसनाक मुकाम है कि एक जमहूरी, चाहे नाम में ही सही, एक जमहूरी हुकूमत इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपोजिशन के अरकान सारे पाकिस्तान से आके अपनी कोई बात कर सकें। लेकिन बहरहाल हमारी ये मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह आपको हम कम्युनिकेट करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हम यहाँ आए थे पूरे पाकिस्तान से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की दावत पर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के लोग आए कि यहाँ हम बैठेंगे और पाकिस्तान जिस दलदल में धंसता चला जा रहा है और जिस तबाही की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे और अपनी आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों के ऊपर, शरई बुनियादों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वतन से वफादारी, उसको निभाने के लिए मनसूबा बंदी प्लान करेंगे, एक लाएमल बनाएंगे और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जदोजहद करेंगे। लेकिन ये जो निशानियां हैं, इसका मतलब ये है रोकना, एक होटल के अंदर प्रोग्राम ना करने देना, इस बात की दलील है ये बौखलाया हुआ सिस्टम है, कमज़ोर है, इंतहाई ये पैरालाइज सिस्टम है। ये गोली के बल बोते पर, ताकत के बल बोते पर ये समझता है कि वो सब कुछ बुलडोज कर लेगा। आप देखें किसी के पाकिस्तान में कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमियतें हों या मुख्तलिफ अदियान हो, किसी की भी यहाँ पर जो हुकूक है वो उसको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा। सारा मुल्क बंद किया हुआ इन्होंने। इराक जाते थे हम लोग ज़ियारत करने के लिए बाई रोड, वो रास्ते बंद कर दिए और जो वज़ीर दाखिला साहब ऐलान करके पाकिस्तान से ही चला गया। कोई काबीना की मीटिंग नहीं हुई, कोई किसी से बात नहीं हुई। हम तंग आ चुके हैं इस जुल्म के साथ, फस्तायत के से। लिहाजा हम भी फैसला किया है कि अपने आइनी हुकूक को अपनी क्या उसे कहते हैं कि हर लिहाज से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और वलो बलग मा बलग, ये में मारे, गोलियां मारे, हमारे सर काट दें, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम अपने, मैंने कल ऐलान भी किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मूव करना है कराची और फिर इमदान की तरफ। हम नहीं मानते इनके किसी भी, हमारे पर एतमाद नहीं है। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं, कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है। कितना बड़ा झूठ है, अवाम के हक पर ढाका डाला है। अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ, हर चीज़ इररेलेवेंट है। सियासत के, रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अपने बोझ तले दब चुके हैं। इस वतन को निकालना, जो हमारी मादने वतन इन हालात से, हम सारे इकट्ठे होंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह इस राह में मर जाना शहादत है। हम कभी भी अपने वतन के साथ खयानत करने वालों को क्या उसे कहते हैं कि इस वतन को तोड़ने, फोड़ने और तबाह बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम अकाबरीन ने बात की, बस महमूद साहब आखिर में बात करेंगे। मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूँ। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आया है और कुछ बताया गया कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। हम तो समझते हैं, हमेशा हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए और हम हर सूरत में जो है ना चाहते हैं कि मुल्क के एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट की निटी ग्रिटी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। आइन जिस बात का पाबंद करता है कि सबसे पहले जिस सूबे में जिसकी जो वसाइल हैं, सबसे पहले उसकी आवाम का उसके ऊपर आके, तो हम ये बात हर सूरत में जानना चाहते हैं कि क्या इसमें जो लोकल कम्युनिटी है जिसको आइन प्रोटेक्शन देती है कि उनकी सूबे की वसाइल पे सबसे पहले उन इलाके के लोगों की हकीमियत है, अथॉरिटी है, उनका हक है, क्या उसको तस्लीम किया गया है कि नहीं। फिर सूबाई को 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबाई हुकूमत का बनता है। हम समझते हैं कि किसी सूबाई हुकूमत के मामले में वफाक को हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। वो सूबाई हुकूमत अपने मफादात के मुताबिक एग्रीमेंट करे, बेशक एक तरीक़ाकार हो, तो एक तो हम इसके ऊपर जो है ना
हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इस जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या हैं और तरीक़ेकार क्या है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इमरान खान जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जेल में है कि वो कुछ लोगों को नापसंद है। जितनी भी उसके ख़िलाफ़ केसेस है वो केसेस गैर कानूनी है, इमोरल है और इसकी बुनियाद में कोई हकीकत नहीं है। और साथ जो भी हमारे दीगर जेल में लोग हैं, अभी जो फैसले हो रहे हैं, जो सरगोदा में ATC ने फैसला किया है, जो लाहौर में किया और आज भी एक फैसला मुतवक्को है फैसलाबाद में, ये पहले से तयशुदा फैसले हैं। यानी अगर इस तरह अदालतों से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो ये बताए फिर ये अवाम किधर जाएंगे। आप तो बिल्कुल अमलन इस मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। आपने इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म किया, आपने इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम इंसाफ का कातिल है और हम समझते हैं कि इसके ख़िलाफ़ अवाम को और वकला को और अदलिया को ख़ुद उनके ख़िलाफ़ उठना होगा। हम अपने जज साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब से ये मुल्तमिस है, बहुत एहतराम के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें बताएं कि अगर आपकी अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती तो क्या हम आलमी अदालत में जाएं? क्या हम अपनी अदालती निज़ाम से मायूस हो जाएं? अदालत जिस वक्त जजेस का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों। ये वक्त गुजर जाता है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, हमारे सूबे में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस पर शदीद तशवीश है। मैं अपनी हुकूमत से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो किसी किस्म की ऑपरेशन को नहीं होने देगी। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आपके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं। हम चाहते हैं आप हमें रोज़गार दे, आप हमें ट्रेड दे। आपने अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड रोका, आपने जो है ना फाटा पे जो है टैक्सेस लगाए, मज़ीद उधर परेशानियाँ पैदा की। वो साइल कोई नहीं दे रहे हैं, ना आप उसको जो है ना जो उसके नेट हाइडल प्रॉफिट दे रहे हैं, न जो सरताज अजीज़ जो आप इस्लामाबाद में देखें कि बात तक करने नहीं दी जा रही है। हमने कोई सड़क बंद नहीं की है, हमारे हाथ में कोई डंडा नहीं है, हमारे हाथ में कोई पत्थर कोई वेपन नहीं है। भाई पीसफुली अकॉर्डिंग टू लॉ, पाकिस्तान के कानून के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत ये हमारा राइट है कि हम बात करें। माना ये आपकी जमहूरियत है कि आपने सारी हदें जो है वो पार कर दी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है वो वायोलेट करते हैं, लॉ को आप वायोलेट करते हैं। ये कहाँ का कानून है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी में वो लोग जो हम काहे के लिए आए? हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो। उस पर आपका डिफरेंट ओपिनियन के लोग जो है, यानी डिफरेंट ओपिनियन आपने सुनना ही नहीं है। ये जो एक बार सदर बनता है, जो वजीर आज़म बनते हैं, वो समझते हैं कि हम ही अकुल कुल हैं। वो जो सोचते हैं, वो जो समझते हैं, वो ही सही है। और इसी वजह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। मुल्क शदीद जो है वो समाजी बहरान में है, मुल्क शदीद मुआशी बहरान में है, मुल्क शदीद सियासी बहरान में है। ऐसी सिचुएशन में ये जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, ये कोई पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। ये हम समझ रहे हैं कि ये इनके पास एजेंडा पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग नहीं है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान दुनिया में बावकार हो, लेकिन इनके जो करतूत हैं, इनके जो अमाल हैं, ये पाकिस्तान के फेस को ख़राब कर रहे हैं।
पाकिस्तान की वैल्यू दुनिया में गिरा रहे हैं। ये अवाम दुश्मन हैं, ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, हमारे मुल्क के वकार के साथ खेल रहे हैं। ये गैर कानूनी अमल जो ये अपनाए, पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमें जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही थी। हम तो अंदर हाल में कर रहे हैं भाई, हम कोई रोड कोई सड़क बंद नहीं कर रहे, न किसी को कोई तकलीफ दे रहे, न किसी आवाम को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आप यानी किसी हाल में हमें बात तक करने नहीं देंगे, और ये आपकी जमहूरियत है। आप तो ये तो गुंडागर्दी है, ये तो बदमाशी है। आप इस तरह, तो इसका मकसद ये जो जितने बैठी हैं सारे माफिया हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऐसे होते हैं, सदर ऐसे होते हैं कि किसी को बात करने तक न दी जाए। बहरहाल ये हमारे यहाँ पे हमारे जो लीडर साहबान खड़े हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हम पीसफुली जो है जिस मकसद के लिए हैं उस पर हम बात करें, और एक जो है वो हमारा ओपिनियन सामने आए, और हम जो चाहते हैं पाकिस्तान की बालादस्ती वो एनी हाउ जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। मजहर राहूजो, एडवोकेट मजहर राहूजो, मरकजी सेक्रेटरी जनरल कौमी अवामी तहरीक, मोहतरम अयाज लतीफ़ अली साहब की पार्टी। डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह, गुड गवर्नेंस फोरम में सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और आज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जैसे कि इस तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो बुनियादी बात आइन की है, और आइन ही वही दस्तावेज़ है जो कि अवाम को, हुकूमत को, सूबों को और वफाक को जोड़ती है। और सियासत में सियासी जमातें वो एक पुल का किरदार अदा करती है जो पूरे अवाम को कराची से लेकर खैबर तक एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और आइन का इब्तिदाइया ये कहता है कि हुकूमत अवाम के 14 मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए होगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करती है, फेयर ट्रायल की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें तहरीर की आज़ादी है, जिसमें तकरीर की आज़ादी है, जिसमें इज्तिमा की आज़ादी है, आज उस पर कदखने लगाई हुई हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ को सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर ज़बान अगर ताले भी लगा दिए जाएं तो उसके बावजूद नज़रिया बोलता है, जमहूरियत पसंद बोलते हैं। और हम आज ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियों के लिए, सियासी आज़ादियों के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और अगर हुकूमत वक्त ये चाहती है कि मुल्क में इंतशार ना हो, यकजहती हो, तो उन्होंने सियासी आज़ादियों को यकीनी बनाना होगा, वरना फिर यहाँ पर इंतशार होगा, अनारकी होगी। मैं एक बार फिर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा जमहूरी आज़ादियों के लिए, सियासी आज़ादियों के लिए, अपने हकूक़ के लिए तहरीकें चलाई हैं, और अवाम एक बार फिर ये तहरीक चलाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। शुक्रिया। अवामी जमहूरी पार्टी सिंध के सदर हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार कौंसिल राय बुलंदी एडवोकेट, आज हम बलूचिस्तान से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए हम यहाँ पे हैं। बल्कि बलूचिस्तान के वकला, पाकिस्तान भर के वकला, आज हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार का सदर, लाहौर बार का सदर और हमारे दूसरे बार कौंसिल के अरकान, वो इस कॉन्फ्रेंस में, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज जिस तरीके से यहाँ पे जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, यहाँ पे जो हाल को बंद किया गया है, यहाँ पे आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत एक बौखलाहट का शिकार हो गया है। और आज का ये कॉन्फ्रेंस आज़ाद अदलिया के लिए एक नहायत अहमियत का हामिल कॉन्फ्रेंस है, और आज का ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में जमहूरियत के लिए एक अहमियत का हामिल कॉन्फ्रेंस है। ये तारीख़ गवाह है, जब भी मुल्क के अंदर आइन के ऊपर हमला किया गया है तो बलूचिस्तान की अकाबरीन ने, बलूचिस्तान की क़यादत ने, महमूद खान अचकज़ी की क़यादत ने, सरदार अताउल्लाह मेंगल, सरदार अख्तर जान मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक, डॉक्टर अब्दुल समेत बलूचिस्तान की आला क़यादत ने हमेशा मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। और आज हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हम आइन के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम सियासी पार्टियों के साथ, सियासी जमातियों के साथ रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। जी बस चलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ। 1 मिनट AJP के सदर। हाँ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह।
नूर नबी राहू जो मरकज़ी सदर अवामी जमहूरी पार्टी सिंध। आज हम दो चार बातें करने चाहते हैं। ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, नूर नबी राहू जो मरकज़ी प्रेसिडेंट अवामी जमहूरी पार्टी, ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, कुछ साल पहले कह रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो। उनसे पूछो कि वोट को इज़्ज़त इस तरह दी जाती है। हम बोलते हैं कि कानून और आइन की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया को आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार देखेंगे, मज़लूम अक़वाम के मसाइल को हल करेंगे, उन पे बात करेंगे और उनके अकाबरीन आपस में बैठेंगे, बैठ के इस इश्यूज़ पे, इन मसाइल पे हम बात करेंगे, एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल बनाएंगे। लेकिन ये हमें एक होटल में भी बैठने नहीं देते। तो इनके पास आवाम की इज़्ज़त ये है, इनके पास हिज़्ब इख्तिलाफ की इज़्ज़त ये है, इनके पास आइन की बालादस्ती यही है। हम इनको इंतबाह करते हैं कि देखो ये वही पार्टीज़ हैं, ज़्यादातर वही पार्टीज़ हैं जिन पार्टियों ने 83 में MRD मूवमेंट चलाई थी और जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद की थी। अगर तुम आइनी बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, आवाम की आज़ादी, अवामी मसाइल पे हमें बात नहीं करने दोगे तो हम फिर MRD जैसी तहरीक चलाएंगे और आपको इक़्तिदार के ऐवानों से खींच के बाहर लाएंगे। फिर आप चिल्लाएंगे कि वोट को इज़्ज़त दो। थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, देर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओपन एयर इस बेहतरीन मौसम में खड़े इस गुनाह की पादाश में कि इन्होंने फ़ैसला किया है कि हमने आइन की बालादस्ती कायम करनी है, हमने यहाँ वोट की इज़्ज़त को बहाल करना है, हमने यहाँ एक ऐसी पार्लियामेंट की तश्कील करनी है, एक ऐसे नए पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जहाँ इलेक्टेड पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने। उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। हम अपील करते हैं हर सुनने वाले मर्द से, हर सुनने वाली औरत से, हर जज से, हर उस जर्नल से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस प्रोफेसर से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि वो हमारी इस लश्कर में शामिल हो। ये लड़ाई आइन की बालादस्ती कायम वाले कोर्टों और आइन को रोकने वाले कोर्टों के दरमियान हमने फैसला कर लिया है। हम अपने आइन का दिफा करेंगे। आइन हमें हक देता है। जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हमें देख रहे हैं। आपको पता है, यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहिबान, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लोगों के जमा होने पे पाबंदी है। लोग होटल से निकल के ओपन एयर में करते हैं। आप बड़े अच्छे गाउन पहने हुए जजेस, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या आपने इस जमहूरी तहरीक का साथ देना है या फिस्ताई पागलों का साथ देना है? बाजवड़ में कत्लेआम शुरू है। जो आदमी हमारा चीफ है, जो आदमी हमारा फील्ड मार्शल है, वो कुरान का हाफिज है। कुरान करीम एक इंसान की मौत को, जिसने किसी को कत्ल न किया हो, जिसने किसी का जुल्म नहीं किया हो, एक आदमी का कत्ल कुरान करीम सारी इंसानियत का कत्ल वो करता है। आपने बाजवड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे। एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद। ऐसे नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, जिंदाबाद। लेकिन हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस पे आइन की बालादस्ती होगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। शाहबाज भाई, आपको मुबारक हो। आप जिस शहर में भी जाएंगे,
कोयटा फर्स्ट। आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हम खाली झंडियों से इस्तीफा करेंगे। This decision of this organization, तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियां काली झंडियों से उनके इस्तकबाल करें और फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।